Morning class. This is the fifth lecture of our solar system. Okay. In this lecture, we will study about the different classification of celestial bodies. Okay. These are the different classification of celestial bodies. Okay. The first celestial bodies is stars, planets, satellites, comets, asteroids, okay, and the next is meteors and meteorites, okay. These are the different celestial body galaxies. These are the different celestial bodies about which we have to study, okay. देखो, in the previous lecture, we have already studied about the stars. Okay. So, what we studied that what is a star? A celestial bodies which have its own light and heat, or which can emits light and heat. That is called star. My dear student, always remember that nebula, what is Nebula, nebula, okay. Nebula is the birth place of a star. What is the birthplace of a star? Nebula is the birthplace of a star. Okay, nebula is the birthplace of a star. Now there is a question in your mind that what is nebula? Okay, my dear students, nebula is nothing but the giant cloud. What is it? It is the giant cloud of gas and dust. Okay, what is nebula? Nebula is the giant cloud of dust and gases. Okay, what is nebula? Nebula is the giant cloud of dust and gases. Okay, नेबुला क्या है? एक जेंट क्लाउड है, किसका? डस्ट एंड गैसेस का. ठीक है, जो बिग बैंग थ्योरी हुआ था. ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में हम लोग क्या देखे थे? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन हुआ था, जस्ट आफ्टर क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्रीज किया. ठीक है, और टेम्परेचर के डिक्रीज होने के साथ साथ किसका फॉर्मेशन हुआ? नेबुला का फॉर्मेशन हुआ. और इसी नेबुला से क्या हुआ? स्टार का फॉर्मेशन हुआ था. That's why nebula is called the birthplace of a star. Okay, what is called the birthplace of a star? Nebula is called the birthplace of the star. And what is nebula? Nebula is nothing but the giant cloud of dust and gas. Okay, nebula is nothing but a giant cloud of dust and gases. ठीक है, nebula have its own spinning movement. Means nebula always rotates or spin on its own axis. Okay, क्या करता है? nebula अपने एक्सिस पे क्या करता है? घूमते रहता है, स्पाइन करते रहता है. ठीक है, और इसके पास क्या है? Its own gravity. Okay, nebula के पास क्या होता है? Its own gravity होता है. And because of this gravity, the particles, the matter of nebula always attracted towards each other. क्या होता है? क्योंकि इसके पास क्या है? इस नेबुला के पास क्या है? उसके पार्टिकल के पास खुद का ग्रेविटी होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी क्या होता है? नेबुला के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जब वो अट्रैक्ट करें क्या हुआ? एक कोलिजन होता है. क्या होता है? एक कोलिजन होता है. एंड दैट कोलिजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ और इमिशन ऑफ heat and light. What is heat and light? ठीक है, नेबुला क्या है बेटा? एक जेंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस है.
क्या ये एक जेंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, इट्स ऑन स्पाइनिंग मूवमेंट, क्या होता है इसके पास, इसका अपना स्पाइनिंग मूवमेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है, नेबुला के पास होता है अपना खुद का क्या होता है बेटा, ग्रेविटी होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी द पार्टिकल्स ऑफ nebula are attracted towards each other, and because of this attraction there is a collision between the particles or between the matters of nebula, and this collision result in the emission of heat and light. Okay, this collision result in the emission of heat and light. And my dear student, what is the star which emits heat and light? That is the star, means star is formed from the nebula. That's why nebula is called the birthplace of star. क्या बोलते हैं इसको, birthplace of star बोलते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? तो जब स्टार के बारे में पढ़े तो हम लोग ऑलरेडी स्टार के बारे में मोर स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं प्लैनेट, ये क्या है, फर्स्ट सेलेस्टियल बॉडी। उसके बाद क्या है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी पढ़ रहे हैं। एंड उस क्लासिफिकेशन में जो पहला क्लासिफिकेशन था वो किसका था बेटा, स्टार का। और हमने क्या देखा, स्टार का फॉर्मेशन कहां से हुआ, नेबुला से हुआ। और नेबुला क्या होता है, जेंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। नेबुला क्या होता है, जेंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। क्या हुआ, नेबुला के पास क्या होता है बेटा, उसके पास खुद का ग्रेविटी होता है और स्पाइनिंग मूवमेंट होता है। बिकॉज ऑफ दिस स्पाइनिंग मूवमेंट एंड सेल्फ ग्रेविटी क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं किसके, या मैटर होते हैं किसके, नेबुला के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन देयर इज इमिशन ऑफ हीट एंड लाइट। और जब क्या होता है, किसी सेलेस्टियल बॉडी से क्या होता है, हीट और लाइट का इमिशन होता है, उसी सेलेस्टियल बॉडी को क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। मींस स्टार आर फॉर्म फ्रॉम द नेबुला। दैट्स व्हाई नेबुला इज कॉल्ड द बर्थप्लेस ऑफ स्टार। ओके, आफ्टर नेबुला वी विल स्टडी अबाउट द प्लैनेट्स। ओके, प्लैनेट के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। प्लैनेट होता क्या है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंडीशन if that three condition is satisfied by any celestial body, that celestial body is called planet. और वो तीन कंडीशन क्या था बेटा, पहला कंडीशन क्या था कि एक सन की ओर क्या करे, ऑर्बिट्स करे, क्या करे, फर्स्ट कंडीशन, अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी सन की ओर ऑर्बिट्स करे तो उसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा, प्लैनेट्स। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या हो, उस पे कोई भी सेलेस्टियल बॉडी का इतना मास हो, क्या हो, मास हो कि उसके ऊपर क्या हो, एक ग्रेविटी फोर्स एक्सर्ट करे। और वो ग्रेविटी फोर्स क्या करे, उस सेलेस्टियल बॉडी के रिजिड फोर्स को बैलेंस करे और क्या करे, एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को अचीव करे। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता था, सेलेस्टियल बॉडी का स्फेरिकल शेप होता था, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या था, एक क्लियर ऑर्बिट हो, ठीक है, मींस अपने नाइबर के ऑर्बिट को क्या करे, इंटरफेयर ना करे, डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। यही कंडीशन पढ़े थे किसमें, जो प्लूटो था वो क्या कर रहा था, नेपट्यून का ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए प्लूटो क्या किया गया, प्लैनेट के शरीर से निकाल दिया गया, ठीक है। अब देखो जब प्लैनेट को पढ़ते हो, ये क्या कंडीशन किसके द्वारा सेट किया गया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। किसके द्वारा सेट किया गया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। जो अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, और इस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन देयर आर ओनली 8 प्लैनेट, ठीक है। कितने प्लैनेट है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 8 प्लैनेट है, ठीक है। अब देखो जो ये प्लैनेट है उसको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया बेटा, दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, पहला क्या है,
टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड दूसरा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैसियस प्लैनेट्स, या इसको और क्या बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट। क्या बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, या आउटर प्लैनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट। क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्लैनेट है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, कौन सा, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड terrestrial planet is also known as inner planets. The second one is known as gaseous planets or Jovian planets or outer planets. Okay? तो ये क्लासिफिकेशन किया गया किसका, प्लैनेट्स का। अब हम लोग देखो डिफरेंट प्लैनेट को देखते हैं, अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं। ये फिगर दिख रहा है बेटा, ठीक है, इस फिगर को देखो और इसमें क्लासिफिकेशन, ये क्या हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं बेटा, सन और उसके एक प्लैनेट एक साथ कंबाइन करके एक फैमिली बनाती है और उसी फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सोलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में क्या है, सोलर सिस्टम में क्या है बेटा, सन है, एक प्लैनेट है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्या बेटा, मेरा सन है। ठीक है, यहाँ पे क्या सन है, ये क्या है, एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि बिटवीन मार्स एंड जुपिटर देयर इज अ बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। क्या है, एस्टेरॉइड्स का एक बेल्ट है। क्या है बेटा, एस्टेरॉइड्स का बेल्ट है, एस्टेरॉइड्स का एक बेल्ट है। ठीक है, तो देखो जो ये बेल्ट है एस्टेरॉइड का, इससे इधर जितने भी प्लैनेट हैं, इससे इधर जितने भी प्लैनेट हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, मींस मरकरी, वेनस और मार्स इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इज आल्सो नोन एज इनर प्लैनेट। इसको और क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किस प्लैनेट को बोलते हैं, मरकरी, वेनस और मार्स। These four planet is called terrestrial planet and our planet, that is the earth, is also the part of terrestrial planets. Okay, terrestrial planet क्या होता है, inner planet भी कहलाता है। ठीक है, अब आफ्टर द एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर, ये क्यों है, एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर है, दैट्स व्हाई इस प्लैनेट को क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट बोलते हैं। और जो प्लैनेट एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट। इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट। क्या बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट। क्या बोलते हैं बेटा, गैसियस प्लैनेट। ठीक है, तो आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट की संख्या कितनी है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। मींस क्या है, 4 इनर प्लैनेट है और 4 क्या है, आउटर प्लैनेट है। ठीक है, अब देखो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, जो हमारा इनर प्लैनेट है इसका साइज क्या है, स्मॉल है। क्या है, स्मॉल है, किससे, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द आउटर प्लैनेट। क्या है, जो साइज है आउटर प्लैनेट का, ये क्या है बेटा, बिगर है। क्या है, बिगर है। ठीक है, मींस जो इनर प्लैनेट है या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है उसका साइज क्या है, स्मॉल है। दैट मींस इसका डेंसिटी क्या है, हाई है। क्या है, इसका डेंसिटी हाई है। ठीक है, अब देखो ये जो प्लैनेट है ये क्या है, बिगर साइज का है और बिगर के साथ क्या है, इसका डेंसिटी भी लो है। ठीक है, इसका डेंसिटी क्या है, लो है। मींस जो भी आउटर प्लैनेट होते हैं उसका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। क्यों, क्योंकि
जो आउटर प्लैनेट हैं कौन कौन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये सब क्या है, आउटर प्लैनेट है। और इसी प्लैनेट को गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं। मतलब ये कैसा है, गैस का बॉल है। किसका बॉल है, गैस का बॉल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। जैसे अर्थ देखो यहाँ क्या सॉलिड स्ट्रक्चर है, लेकिन जो भी आपको इनर प्लैनेट है इसका स्ट्रक्चर कैसा, सॉलिड है, जस्ट लाइक अर्थ। क्या होता है वहां पे, रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर में इनर प्लैनेट का शेप है, ठीक है। लेकिन गैसेस, ये आउटर प्लैनेट का शेप कैसा, गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फेज में, इसलिए इसको गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो भी इनर प्लैनेट है इसकी डेंसिटी क्या है, हाई है। जो भी आउटर प्लैनेट है इसकी डेंसिटी, सॉरी, जो इनर प्लैनेट है इसकी डेंसिटी क्या है, हाई है। जो भी इनर प्लैनेट है इसकी डेंसिटी क्या है, लो है। अब देखो डेंसिटी क्या होता है, सपोज करो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है। मानो ये आपका क्लास है, ठीक है। क्लास में अभी मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट है, ठीक है। आपके क्लास में क्या है, ओनली 5 स्टूडेंट है। मींस जो स्पेस 1 स्टूडेंट ऑक्युपाई कर सकता हो क्या मच मोर हायर होगा। अगर मैं क्या करूं, इसी क्लास में 5 के जगह पे 50 स्टूडेंट को लाके ठूस दूं, क्या होगा, अब एक स्टूडेंट के द्वारा ऑक्युपाई क्या होगा, स्पेस क्या होगा, कम हो जाएगी। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग इसमें 50 स्टूडेंट को ठूस दिए, इस रूम की डेंसिटी इंक्रीज हो गई। क्या हुआ, इस रूम की डेंसिटी इंक्रीज हो गई। जब हम लोग इसमें 5 स्टूडेंट को रखे थे तो क्या था, इसमें डेंसिटी क्या थी बेटा, लो था, ठीक है। अब गैसेस में क्या होता है, जो पार्टिकल के बीच का स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई होता है एज कंपेयर टू द स्पेस इन द केस ऑफ सॉलिड लिक्विड। नहीं, इसकी डेंसिटी जो है गैस का हमेशा क्या होता है, लो होता है। और जो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होता है, ठीक है। वैसे डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो प्लैनेट का क्लासिफिकेशन किया गया 2 पार्ट में, ठीक है। कौन कौन सा, इनर प्लैनेट, और इनर प्लैनेट को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। और इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं, मरकरी, वेनस और मार्स, ठीक है। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, आउटर प्लैनेट, और आउटर प्लैनेट कौन था, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। इसका साइज क्या होता है, बिग साइज होता है, ठीक है। इसी चारों को क्या बोलते हैं लोग, जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं, जोवियन, JOVIAN प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम लोग सोलर सिस्टम को स्टडी करेंगे तो हर एक प्लैनेट को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। हर एक प्लैनेट को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, क्लासिफिकेशन देख लिया। जो प्लैनेट है 2 टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट इज आल्सो नोन एज आउटर प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट, ठीक है। अब ये जोवियन प्लैनेट कौन सा होगा, जो भी प्लैनेट एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर एग्जिस्ट करता हो। एस्टेरॉइड के बारे में भी बताऊंगा। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होता है बेटा, एक बेल्ट है किसके बीच में, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सेलेस्टियल बॉडी क्या है, प्लैनेट। अब क्या है, सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है, फॉर एग्जांपल, सॉरी, सैटेलाइट क्या होता है बेटा, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट आप लोग देखते होंगे रात को एक मून दिखता है, आपको दिखता है ना, तो मून क्या है, सैटेलाइट है। मींस प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। क्या करता है, सन के चारों ओर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है। लेकिन जो सैटेलाइट होते हैं वो क्या करता है, प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं अपने एक फिक्स ऑर्बिट में। क्या करते हैं, प्लैनेट के चारों ओर
रिवॉल्व करते हैं अपने एक फिक्स ऑर्बिट में। कौन? सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल जब हम लोग अर्थ को पढ़ रहे हैं, किसको? अर्थ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है अर्थ? क्या है? हमारा एक प्लेनेट है और इस प्लेनेट क्या बेटा? लाइफ का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फेस ऑफ मून पढ़े थे, मून के बारे में पढ़े। मून क्या है? अर्थ का एक सैटेलाइट है। मतलब मून क्या करता है? एक फिक्स ऑर्बिट में, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है? सन का क्या करता है? प्लेनेट। कौन से प्लेनेट का? अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है, समझ में आया? और कितना समय लगता है? 27.3 डेज। कितना लगता है? 27.3 डेज। किसको? मून को अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करने में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। किसका? मून का। तो हमेशा याद रखना सैटेलाइट क्या होता है? वैसा सेलेस्टियल बॉडीज, दो सेलेस्टियल बॉडी which orbits around the planet in a fixed orbit and that orbit is elliptical shape. ठीक है, क्या हो? एक वैसा सैटेलाइट जो प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। कितने टाइप के सैटेलाइट होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक कौन होते हैं? नेचुरल सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, और क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या होते हैं? जो हमारा स्पेस रिसर्च है, क्या है? स्पेस रिसर्च है, वो क्या करता है? डिफरेंट सैटेलाइट को स्पेस में सेंड करता है, जिससे क्या होता है? वो क्लाइमेटिक कंडीशन को, रिसोर्सेज को, क्लाइमेटिक कंडीशन अर्थ का स्टडी कर सके। ठीक है, फॉर रिसर्च पर्पस के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंड किए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट सैटेलाइट ऑफ कॉमेट्स। अब कॉमेट्स क्या बेटा? कॉमेट्स जो होता है ये क्या है? एक कॉमेट्स क्या करता है? ये भी क्या करता है? सन के और रिवॉल्व करता है। क्या? सन के और रिवॉल्व करता है। ठीक है, और जब ये सन के क्लोज चला जाता है, क्या करता है बेटा? सन के क्लोज जाता है, क्या करता है? इट हीट अप एंड बिकम ए giant ball of fire। क्या करता है? giant ball of fire में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका दो पार्ट होता है। जो इस पार्ट को देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेल। इसको क्या बोलते हैं? टेल। और ये ब्राइट पार्ट देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड। ठीक है, तो कॉमेट्स का कितना पार्ट होता है? दो पार्ट होता है। कौन सा? एक हेड होता है, दूसरा क्या होता है? टेल। जो ये देख रहे हो ना, ये आपको दिख रहा है ना, इस तरह से, कुछ इस तरह से दिख रहा है, और यहां पे ऐसे है। ये क्या है? हेड है। ये क्या है? टेल है। तो याद रखना, जो हेड होता है, ये क्या होता है? टुवर्ड्स द सन होता है। और जो टेल होता है ये क्या होता है? अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, तो कॉमेट्स का कितना पार्ट होता है? दो पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है हेड, दूसरा क्या होता है? टेल। ठीक है, जो हेड पार्ट होता है वो टुवर्ड्स द सन होता है, और जो टेल पार्ट होता है वो क्या होता है? मानो यहाँ पे सन है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? यही पार्ट सन के और होगा। ठीक है, ये पार्ट क्या होगा? हमेशा अवे फ्रॉम द सन होगा। ठीक है, सिंपली comets is a celestial body. What? A glowing celestial body. What is comets? Comets is a glowing celestial body that revolves around the sun. Okay, if someone asks you what is the definition of comets, what you will like? It is glowing celestial bodies that revolves around the sun। ठीक है, क्या करता है? Comets is nothing but a glowing celestial body that revolves around the sun। Okay,
एंड क्या करता है ये क्या होता है, डस्ट, आइस पार्टिकल और गैसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, कॉमिक्स किससे मिलकर बना होता है, डस्ट से, आइस से और गैसियस पार्टिकल से। ठीक है, और क्या होता है, द सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच इज मेड फ्रॉम डस्ट, gas and ice and having glowing, the glowing celestial bodies that is made from dust, gas and ice and revolves around the sun is called comets। ठीक है, और कॉमिक्स का क्या होता है, दो पार्ट होता है। कौन कौन से, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। जो हेड होता है टुवर्ड्स द सन होता है, जो टेल होता है वो अवे फ्रॉम द सन होता है। ठीक है, और जब क्या होता है, जब ये कॉमिक्स रिवॉल्व करते करते सन के क्लोज जाता है, क्या होता है, ये हीट्स अप हो जाता है। ठीक है, जब ये कॉमिक्स रिवॉल्व करते करते सन के क्लोज जाता है, क्या होता है, हीट्स अप हो जाता है, हीट्स अप हो जाता है। ठीक है, और जब ये हीट्स अप हो जाता है तो ग्लो करने लगता है। क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। जब ये ग्लो करने लगता है तो कभी कभी हम लोग के द्वारा क्या होता है, ये कॉमिक्स विजुअल होता है। क्या होता है बेटा, कभी कभी ये विजुअल होता है। ठीक है, तो यस, कॉमिक्स कैन बी विजुअल टू अस। ओके, when it comes close to the sun and because of the heat of the sun, what happens, these comets will heat up. What, these comets will heat up. When these comets will heat up, then it will glow and at that time it may be seen to us। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो what is the example, हेलेकोमिक्स, ओके, हेलेकोमिक्स ये क्या है, एक कॉमिक्स है जो हमेशा क्या होगा, 75 टू 76 ईयर में, 75 टू 76 ईयर में दिखता है। ठीक है, क्या होता है, 75 टू 76 ईयर में दिखता है। क्या होता है बेटा, 75 टू 76 ईयर में कौन सा कॉमिक्स दिखता है, हेलेकोमिक्स। कौन सा कॉमिक्स दिखता है, हेलेकोमिक्स। ठीक है, तो सिंपली देखो कॉमिक्स होता क्या है, simply a glowing celestial body that revolves around the sun. That celestial body is called comets. It is made from gas, dust and ice particles. Okay, comets have two parts, one is called head and another is called tail. Okay, the head part is always facing toward the sun. Okay, and the tail part is always away from the sun. Okay, when these comets come close to the sun, then it gets heat up. What happened, these comets will get heat up. When these comets get heat up, then it will glow. Okay, when it will glow, at that time it is visible to us. Okay, there is a Halley is the comets. Okay, helecomets is an example of comets and it is visible after every 75 to 76 year. Okay, what happened, it will visible after every 75 to 76 year. Okay, this all about the comets. Okay, उसके बाद क्या, एस्टेरॉइड। मैंने जो आपको मैप दिखाया था, क्या बोला था, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है। किसका बेल्ट है, वो एस्टेरॉइड का बेल्ट है। और वो जो एस्टेरॉइड जो होता है वो भी क्या करता है, अर्थ के चारों, वो भी क्या करता है, सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। क्या करता है बेटा, सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, कौन, एस्टेरॉइड। ठीक है, अब हम लोग अनदर जो सेलेस्टियल बॉडी है उसका क्या नाम है बेटा, एस्टेरॉइड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एस्टेरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये एस्टेरॉइड दिख रहा है आपको, इसी तरह का है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल मैटर होते हैं जो क्या करते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच के बेल्ट में पाए जाते हैं और क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, देखो स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडी, सबसे पहले एस्टेरॉइड क्या होता है बेटा, स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडी होता है विद इरेगुलर एंगुलर फेस, विद
irregular angular phase which are very similar to planets. ओके, ये क्या होता है? जो एस्टेरॉइड होते हैं ये क्या होते हैं? स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज है। क्या है बेटा? स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है। और इसका शेप कैसा होता है? एंगुलर इरेगुलर एंगुलर फेस होता है। क्या होता है? इरेगुलर एंगुलर फेस। क्या होता है? इरेगुलर एंगुलर फेस होता है। किसका? एस्टेरॉइड्स का, ठीक है। और ये क्या होता है? जस्ट सिमिलर होता है किससे? प्लैनेट से, ठीक है। एस्टेरॉइड क्या होता है? जस्ट सिमिलर होता है किससे? प्लैनेट से, ठीक है। डिवेरीज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। देखो, जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जो डिवेरीज होता है, डिवेरीज बेटा, डिवेरीज क्या होता है? नथिंग बट द स्टोन या आयरन का पार्टिकल होता है। क्या होता है? स्टोन या आयरन का पार्टिकल होता है, ठीक है। स्टोन या आयरन का पार्टिकल होता है। कौन? डिवेरीज। यही जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, जो डिवेरीज बचा उसी क्या है? उसी को हम लोग एस्टेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। मेनली जो है एस्टेरॉइड का बेल्ट कहां पाया जाता है? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। और ये क्या करता है? ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ठीक है। सीरस is the biggest asteroid. Okay, name, if someone asks you name the biggest asteroid, then what is your answer? Ceres is the biggest asteroids. Okay, Ceres is the biggest asteroids. Okay, तो एस्टेरॉइड क्या है? सिमिलरली एक स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज है जो क्या है? प्लैनेट से सिमिलर है, ठीक है। और उसका शेप कैसा है? इरेगुलर एंगुलर फेस है। क्या है? इरेगुलर एंगुलर फेस। देखो ये क्या शेप इरेगुलर दिख रहा है और क्या एक एंगल पे है, एंगुलर फेस है, तो इसी क्या बोलते हैं? इरेगुलर एंगुलर फेस बोलते हैं, ठीक है। हम लोग एस्टेरॉइड को भी देख लिए। आफ्टर एस्टेरॉइड क्या होता है? मेटोर्स एंड मेटोराइड्स को करते हैं, ठीक है। देखो, मेटोर्स जो होता है क्या होता है? जब दो एस्टेरॉइड्स, ठीक है, जब दो एस्टेरॉइड्स क्या करता है? कोलाइड कर देता है। क्या करता है? कोलाइड करता है, तब मेटोरॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? मेटोरॉइड्स का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है? मेटोरॉइड्स का। मेटोरॉइड्स, ये मेटोरॉइड्स क्या होता है बेटा? सिंपली रिमेंबर दैट जब क्या होगा? मानो एस्टेरॉइड अपने बेल्ट में